Hello students, welcome in Zahra's classes, and today we are here to study about plasma membrane. In previous class we studied about the different models as well as the fluid mosaic model of plasma membrane, and today in this lecture we will study about the membrane transport, how plasma membrane assists in transportation of particular substances in and out of the cell. And in this membrane transport, especially we are going to discuss about osmosis. So once again, I welcome you all. Myself, Dr. Ezera. Let's move on to the lecture. So here, starting with the lecture, we will start with some basic questions. Definitely you're going to get the answers in the coming lecture, in the coming slides. So you have to watch this entire lecture, entire this video, so that you get the answer to these basic questions. So these two questions I have put up and these questions will definitely going to clear your some of the basic aspects. So first question is what are cell ghosts, and second it is multiple choice question. In osmosis, water always moves toward the dash solution, that is toward the solution with the dash solute concentration. So here the options given are isotonic greater, hypertonic lesser, hypertonic greater and hypertonic greater. So students, in coming slides you are going to definitely get the answers to these questions. So stay tuned and let's move ahead. सो व्हाट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट? बच्चों, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यानी वो ट्रांसपोर्ट जो एक मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से इन एंड आउट होता है, कोई भी चीज़ का पैसेज जो होता है या किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस पैसेज को, उस मूवमेंट को हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और यहाँ पे आप देखिए, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज़ द पैसेज ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स. मेटाबोलाइट्स यानी वो चीज़ें जो पर्टिकुलर सिंथेसिस के लिए या पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए लगते हैं और एक सेल के अंदर, और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको सेल के बाहर ले जाने का जो पैसेज होता है या जो मोड होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. एंड दिस इज अ पैसेज ऑफ व्हाट? मेटाबोलाइट्स as well as byproducts across biological membranes. Biological membranes, students, you can go and see biological membranes in previous lecture. Biological membranes के बारे में आपको पता है कि वो जितने भी membranes है जो cellular organelles को या cell को cover करता है वो totally हम कहते हैं plasma membrane, और cellular organelles के ऊपर जो membrane cover होता है उसको हम biological membranes कहते हैं. तो इन membranes के across जो भी movement होता है, चाहे वो metabolites हों, कोई भी तरह के बाय प्रोडक्ट्स हों, बायोकेमिकल, कोई भी बायोकेमिकल्स हों, तो ये सेल के अंदर इनका आना और बाय प्रोडक्ट्स यानी कि वेस्ट मटेरियल्स का बाहर जाना, ये दोनों तरफ आने और जाने के मूवमेंट को, पैसेज को मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है उसको हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं. So it is clear students now. Now fluid mosaic model, क्योंकि in previous lecture you have studied what is fluid mosaic model and how it is accepted and why it is accepted, because it thoroughly explains, it clearly explains the permeability of the membrane. So fluid mosaic model explains the transport very nicely. It explains the transport of molecules in and out of the cell as well as the cell organelles. As cell membrane is why it explains the transport of material, because it is selectively permeable or semi permeable membrane. So students, I need to explain some points on selective and semi permeability of membranes. सेमी परमिएबल क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होता है जो कि अलाउ करता है कुछ पार्टिकल्स को पास ऑन करने के लिए. ठीक है, वो उसमें कुछ ही पार्टिकल्स अलाउड होते हैं, कुछ पार्टिकल्स नहीं अलाउड होते हैं. परमिएबल मेम्ब्रेन वो होता है जो कि किसी भी तरह के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को वो बहुत इजीली रेडिली अलाउ करता है, उसको परमिएबल कहते हैं. सेमी परमिएबल यानी कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूट या कुछ सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलाउ करता है. लेकिन जो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव चीज़ों को ही अलाउ करता है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करता है आने और जाने के लिए. तो यहाँ पे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दोनों चीज़ों की परमिएबिलिटी शो करता है, सिलेक्टिव भी एज वेल एज सेमी परमिएबिलिटी भी.
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सोल्यूट पास होता है, उसके थ्रू सोल्यूट आराम से पास हो सकता है, एज वेल एज ये कुछ सॉल्वेंट्स को भी परमिशन देता है कि वो एंट्री कर सके। इसके अलावा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को ही पास करने की परमिशन देता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत आराम से इसको शो करता है, इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट बहुत आराम से इसमें हैंडल होता है और इस मॉडल के थ्रू हमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से समझ में आया, इसलिए ये वेल एक्सेप्टेड मॉडल भी है। एक चीज़ और, सेमी परमिएबिलिटी की खासियत है कि इट अलाउज द सेल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। Again, for homeostasis students, I have provided the link in the description box, or you can click the I given above so that you can check what is homeostasis and how it works with the cell. तो semi permeability ये सेल की होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर लिए जाते हैं वो हैं वाटर, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन और कुछ हार्मोन्स या हार्मोन्स को भी लिया जाता है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनको बाहर फेंका जाता है, चाहे वो नाइट्रोजिनस वेस्ट हो, चाहे सिक्रीशंस किसी फॉर्म के हों या फिर गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बेसिकली इन चीज़ों को डील करता है कि वो पैसेज को अलाउ करता है, एंट्री या एग्जिट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स। And fluid mosaic model explains this very nicely and very properly, and it also explains the homeostasis, how cell maintains homeostasis. So students, I hope you must have understood what is membrane transport actually. Now coming on to the next aspect, next part, that is what are the modes and methods of transport. Methods of transportation, as you will see, membranes they are selectively permeable, and there are different methods of transport across the cell membrane, and these different methods are basically three methods: passive transport, active transport and bulk transport. Now in this section today, in this lecture, we are going to study about passive transport and only one part, that is osmosis. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप तीन अलग और मोड्स देखते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, जो कि अगेन डिफ्यूजन जो है वो आपके लिपिड मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में आप देखेंगे, मेम्ब्रेन चैनल्स के थ्रू देखेंगे, और मेम्ब्रेन चैनल्स में भी जब आप देखते हैं तो फिल्ट्रेशन एग्जाम्पल है और डायलिसिस है। तीसरे तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट आप देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें कि आयन चैनल्स होते हैं एंड परमिएजेस होते हैं। दिस वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, बट टुडे वी आर फोकसिंग ओनली ऑन ऑस्मोसिस. Coming on to active transport. Active transport, again it is of two types, that is primary active transport and secondary, and bulk transport is of two types, endocytosis and exocytosis, where endocytosis includes pinocytosis as well as phagocytosis. So these are the total methods of transportation that are associated with membrane, plasma membrane or any biological membrane. And today we are going to focus on passive transport and especially osmosis. So students, get ready for that. Let's see what is passive transport and then coming on to osmosis. Now what is passive transport? Passive transport is what? It is the movement of substance from one region of a system टू अनदर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ये बहुत खास बात है, इसमें किसी तरह की एनर्जी नहीं लगती. एनर्जी क्यों लगती है भाई? जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट मूव करते हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है. लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर धारा में मूव कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. और इस मूवमेंट को, इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे कोई भी एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है और कोई भी स्पेशल एक्टिविटी इसको रिक्वायर्ड नहीं होती है. बहुत आसानी से ये मूवमेंट होता है इसका, सब्सटेंसेस का, बिकॉज इट अकर्स अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट है उसी के अलोंग वो मूव करता है. जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, हाई लो का कॉन्सेंट्रेशन है या केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स हैं, वो उसी के रेंज में वो मूव करता है, उसके अपोजिट मूव नहीं करता. इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह की एनर्जी का यूज नहीं होता है, बहुत आराम से मूव होता है, इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वो मूवमेंट जो होता है सब्सटेंस का अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. So I hope you must have understood what is passive transport.
नाउ कमिंग ऑन टू द वन ऑफ इट्स पार्ट, दैट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या है? ये ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन है. अपार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन seen through permeable membrane, this is also a type of diffusion where the movement of water or solvent from region of a higher concentration or chemical potential, if you take example water, to region of lower concentration or chemical potential, if you take example any concentrated solution, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. यानी कि किसी भी सॉल्वेंट का या वाटर का मूवमेंट एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन पे मूवमेंट होता है थ्रू अ मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस. डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट पेज. नाउ ये क्यों होता है? क्योंकि जो मेम्ब्रेन होता है इसमें एक्वापोरिन्स होते हैं या चैनल्स होते हैं, और ये चैनल्स बहुत आराम से वाटर को डिफ्यूज करा देते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, कि अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ये बहुत हाई है और यहाँ पे लो है, तो हाई से लो में जाने के लिए ये बिल्कुल धारा से मूव हो रहा है तो बहुत आराम से मूव होगा. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इसको पास ऑन करने की जरूरत होती है. ये परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है इसके अंदर एक्वापोरिन्स होते हैं जो ये वाटर को या किसी भी सॉल्वेंट को बहुत आराम से पास ऑन करा देते हैं विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी और एनी स्पेशल एक्टिविटी. और किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो सॉल्वेंट होता है वो बेसिकली वाटर होता है. नाउ दिस एक्वापोरिन्स जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इसको पीटर एग्रे ने डिस्कवर किया था इन 1991. सो दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. सो नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस, और इसको हम समझते हैं यहाँ पे. दिस इज वन एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टूडेंट्स, जस्ट सी इट वेरी नाइसली एंड you will understand it. Now in this experimental setup you will see that there is a beaker, and this beaker is it is divisible into two sections, where section A contains and this section is divided by any membrane. This is, you will see, semi permeable membrane. यहाँ पे बीच में आप ये देख रहे हो, this is semi permeable membrane. सो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये बीकर डिवाइडेड है, और ये सेमी परमिएबल कुछ मेम्ब्रेन कुछ भी हो सकता है, एक मेम्ब्रेन हो सकता है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक पार्ट ए है जिसमें 15% शुगर है अलॉन्ग विथ वाटर. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है तो ये 15% शुगर है, बाकी 85% जो है वो वाटर है. एंड पार्ट बी जो आप देख रहे हैं वहां पे केवल वाटर है, that is it is 100% water, that is pure water. Now आप यहाँ पे देखिए कि शुगर सॉल्यूशन एंड वाटर दे बोथ आर स्टैंडिंग एट इक्वल लेवल. देखिए यहाँ पे भी लेवल इक्वल है, ये दोनों सेक्शंस में वाटर और शुगर सॉल्यूशन का लेवल जो है वो इक्वल है. ओके, दे स्टैंड एट इक्वल लेवल्स. सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देखिए जो शुगर मॉलिक्यूल्स एज यू कैन सी दे आर कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल. तो जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से ये शुगर पार्टिकल का मूवमेंट आप देखिए किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूवमेंट नहीं है, बिकॉज दिस मेम्ब्रेन विल नॉट अलाउ दिस शुगर पार्टिकल. सो दिस शुगर मॉलिक्यूल्स बीइंग दे आर लार्ज, देयरफॉर दे आर अनेबल टू डिफ्यूज थ्रू दिस मेम्ब्रेन. ये यहाँ से डिफ्यूज नहीं हो पा रहा है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ये डिफ्यूज नहीं हो पा रहा है. ठीक है, बट वाटर मॉलिक्यूल को आप देखिए, एज कंपेयर टू शुगर मॉलिक्यूल द साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज small, as well as it is diffusible and it pass through the membrane. It can pass वो दोनों डायरेक्शन में, इसमें भी और यहाँ से यहाँ भी, दोनों डायरेक्शंस में ये पास हो सकता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अदर साइड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच स्ट्राइक्स द मेम्ब्रेन. तो यहाँ से मूवमेंट ये वाटर मॉलिक्यूल का दोनों साइड में डिपेंड करता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट में वो स्ट्राइक कर रहे हैं. ठीक है, नाउ आप यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट में जब हम देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? मोर वाटर मॉलिक्यूल्स पास फ्रॉम पार्ट बी. यहाँ से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पास हो रहा है? पार्ट बी से पास हो रहा है. ठीक है ना, मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल पास फ्रॉम पार्ट बी इनटू पार्ट ए. देखिए ज्यादा से ज्यादा इस तरफ मूवमेंट हो रहा है. Why? Because the water molecule here is at higher concentration. यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी के मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल का हायर हो गया.
लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया वाटर मॉलिक्यूल का, लोअर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 85% प्रेजेंट है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितना है, 100% प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। दूसरी चीज ये है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो साइज है वो एज कंपेयर टू शुगर मॉलिक्यूल इज स्मॉल एंड इट इज डिफ्यूजिबल। तो नाउ वाटर मॉलिक्यूल जो आपके बी पार्ट में है, दे विल वेरी रेडिली मूव एंड दे विल मूव टू पार्ट ए। देख रहे हैं ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट रिक्वायरिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। अब जो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है कि नाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन शुगर सोल्यूशन है वो मोर न्यूमरस हो गए and exposed to a large area of the membrane than before। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा थे, यहाँ से ये इस तरफ मूव हो गए, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत आराम से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में पास हो रहे हैं, और ये जो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं तो वो फिर वापस मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। क्यों? ताकि दोनों तरफ का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो सके। सो दिस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सेक्शन ए विच helps the water molecule to cross back into part B। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब यहाँ से क्रॉस हो गए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ का ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से ये फिर मूव करने की कोशिश करेगा बी की तरफ। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डेवलप हो जाता है और इसकी वजह से ये दूसरे साइड भी वाटर मॉलिक्यूल मूव करने की कोशिश करता है, और इस वजह से मूवमेंट में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश होती है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम तब तक मेंटेन होता है जब तक कि दोनों जगह का बैलेंस नहीं होता। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे पार्ट बी में, सेक्शन बी में जो है वाटर का लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन होता है। ठीक है, और ये डिफ्यूजन इक्वल रेट से होते होते तब तक ये होता है जब तक कि दोनों तरफ बैलेंसिंग या प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्ट बी में जो है वो वाटर का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। हियर दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज ऑस्मोसिस। सो हियर अगेन व्हाट हैपेंस कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है आपके पार्ट ए में डेवलप हो रहा है, कॉलम ए में डेवलप हो रहा है, चेक करता है वो, और नेट गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को चेक करता है, कितना वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आया और कितने वाटर मॉलिक्यूल से वो एक प्रेशर को मेंटेन कर सकता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, और इस इक्विलिब्रियम में आप देखते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में एक मेम्ब्रेन के थ्रू पैसेज होता है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ऑस्मोसिस। Now coming on to the next section of this, and here we will see कि what is osmotically active solutions actually। osmotically active solution, लेकिन सबसे पहले osmosis की एक definition हम जान लेते हैं कि osmosis क्या है। osmosis is a type of diffusion of water or solvent through a semi-permeable membrane, and here the solvent in biological system is water, and this solution, the diffusion of water or solvent through semi-permeable membrane takes place from a solution of lower concentration of solute to a solution of higher concentration of solute। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन जो कि पानी ड्रॉ करता है अपने अंदर बाय ऑस्मोसिस को हम कहते हैं एक्टिव सॉल्यूशन। कौन सा एक्टिव सॉल्यूशन? ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जो अपने अंदर पानी लेता है, वो सॉल्यूशन जो अपने अंदर पानी लेता है, सॉरी, वो सॉल्यूशन जो अपने अंदर पानी लेता है, वो सॉल्यूशन जो अपने अंदर पानी लेता है विच ड्रॉस वाटर इनसाइड इट बाय ऑस्मोसिस, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन। अभी आपने इस एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल में देखा शुगर सॉल्यूशन, वो शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं वो हम अभी देखते हैं। इसमें आप देखिए, पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि जो सेल होता है, बॉडी के अंदर जो सेल होता है वो सब एक ऑस्मोटिक सिस्टम है।
ठीक है। और वो सिस्टम में जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ही थ्रू वाटर एंटर करता है या बाहर आता है सेल के बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और इसमें 3 तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो बॉडी में रोल प्ले करते हैं, और एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं आरबीसीज का, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ आरबीसी, और एक्सक्यूज मी, so here when we take example of RBCs, when we take example of RBC and when it is placed outside the body, अगर हम RBC को लेते हैं और बहुत आराम से RBC रेड ब्लड सेल्स को जब हम लेते हैं और ब्लड स्ट्रीम से अगर उसको बाहर रखते हैं एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है? वो सॉल्यूशन है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। तो जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें कि उसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो सेम है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो इस कंडीशन में जब हम एक आरबीसी को रखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसके अंदर हमें कोई चेंज नजर नहीं आता है, इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट या नेट लॉस या नेट गेन इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि for this is because water leaves and enter RBC at the same rate, यानी कि इसमें दोनों बराबर है, तो वाटर का जाना और आना दोनों सेम रेट से होता है आरबीसी से बाहर वाले सोल्यूशन में। तो इसमें ना तो किसी तरह का गेन होता है ना किसी तरह का लॉस होता है, और कोई भी चेंज आरबीसी के ऊपर नजर नहीं आता है। और ये जो सॉल्यूशंस हैं वो दैट आर आइसोटोनिक विथ बॉडी फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स इनटू द बॉडी। तो जो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है बॉडी फ्लूइड्स के साथ, यानी कि जो बॉडी फ्लूइड्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्रेडियंट है सेम, वही कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशंस में भी होता है, इनको हम यूज करते हैं इंजेक्टिंग ड्रग्स इनटू द ब्लड। और आप देख सकते हैं कि जो NaCl है 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी नमक सॉल्ट एंड 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन जो होता है वो आइसोटोनिक होता है किसी भी मेमेलियन आरबीसी के लिए। दूसरी कंडीशन जब हम देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में आप देखिए कि हम यहाँ पर लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि जब हम इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो इक्वल होती है सो हियर व्हेन यू सी इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हम किसी आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया, यानी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से, यानी वाटर में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता है, और यहाँ पर एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। सो यहाँ पे सॉल्यूट इज लेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है। तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एंटर करने की कोशिश करेगा आरबीसी के अंदर, और इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अंदर एंटर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर गेन होगा, जिससे कि सेल जो है वो स्वेल होगा और बस्ट हो जाएगा। जब ये सेल स्वेल होता है, आरबीसी स्वेल होते हैं और बस्ट होते हैं, तो बस्ट होने के बाद जो चीज रह जाती है उसको हम कहते हैं सेल घोस्ट। सो व्हाट इज सेल घोस्ट? दे आर एक्चुअली द एनिमल सेल विदाउट इंटरनल कंटेंट। नेचुरल है, जब ये बस्ट हो गया, देखिए यहाँ पे बस्टिंग हो रही है, तो जब ये बस्ट हो गया तो बस्ट होने के बाद कोई भी इंटरनल कंटेंट नहीं रहता, वो पूरा निकल जाता है, और इसीलिए इसको हम एक सेल घोस्ट के नाम से देते हैं। एंड ये जो सेल घोस्ट है इसी वजह से इसको नाम दिया गया है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्टी से माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व हो सकते थे बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल कंटेंट। ओके, तो ये I hope so you have got the answer to the first question, what are cell ghosts? Cell ghosts are the animal cells without their internal
कंटेंट। ओके, सो यहाँ पे ये सेल घोस्ट बनता है अगर हमने आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम होती है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और वाटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ आरबीसी। Now coming on to the next osmotically active solution, that is hypertonic solution। तो hypertonic solution में जब हमने RBC को डाला, अब hypertonic solution कौन सा solution होता है? जिसमें concentration of solute जो है वो ज्यादा है, यानी solid particle ज्यादा है as compared to concentration of water एज कंपेयर टू इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर का जो पानी का कंटेंट है वो ज्यादा है और बाहर जो है वो कम है। तो वो सॉल्यूशन जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है और पानी कम है वो बाहर होता है, और इसका उल्टा सेल के अंदर होता है, यानी कि पानी का कंटेंट ज्यादा होता है। तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी मूव करेगा, तो सेल के बाहर पानी आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है और इसको हम कहते हैं क्रीनेशन। सो यहां पर आपने देखा कि ये तीन तरह के सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, कैसे आप इसका कॉन्सेप्ट आपने समझा। आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो हियर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, hypotonic solution and hypertonic solution. Now coming on to the next thing, that is you will see this is the behavior of RBC in isotonic, hypotonic and hypertonic solution, where you will find cell bursting when it is placed in hypotonic solution. If it you will find shrinking when you place it in hypertonic solution, and there will be no change when you place it in isotonic solution. तो हम ये बता सकते हैं कि आरबीसी के लिए अगर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाए तो 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक होता है, 0.66% जो होता है हाइपोटोनिक होता है, एंड 1.25% अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा तो वो हाइपरटोनिक उसके लिए हो जाता है। सिमिलरली 5% अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो वो उसके लिए आइसोटोनिक है, 10% आपने रखा ग्लूकोज सॉल्यूशन तो वो हाइपरटोनिक हो जाता है, एंड 0.2% है तो वो हाइपोटोनिक हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट होता है अगर उसको आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। क्यों? बिकॉज देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन नॉट विथस्टैंड द हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और वहां पे वो इमीडिएटली बर्स्ट हो जाता है अगर आपने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो। और इसीलिए जो सॉल्यूशंस है आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स आर यूज्ड, इसीलिए इंजेक्शंस के लिए इसी तरह के सॉल्यूशंस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यूज करते हैं, ना तो हाइपोटोनिक ना हाइपरटोनिक। So here the concept is clear, I suppose students. Now coming on to the next slide, that is what is plasmolysis and deplasmolysis. इसी से related हम ये plant cell में देखते हैं कि ये तो हमने एनिमल सेल में देखा, आरबीसी को लिया मेमेलियन सेल में। अब हम जब प्लांट सेल में आते हैं तो वहाँ पे ये ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशंस का क्या रोल होता है। तो प्लांट सेल में जब हम देखते हैं, इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाता है, यानी कि वो सॉल्यूशन, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपको पता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगेन प्लांट सेल को अगर हमने रखा तो साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना पानी जो है वो रिलीज कर देता है, क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें पानी की मात्रा कम है। क्यों? क्योंकि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और वो श्रिंक हो जाएगा एंड सेपरेट फ्रॉम सेल वॉल से वो सेपरेट हो जाएगा, जिससे एक्सोस्मोसिस यानी अगर आप ये प्लांट सेल देख रहे हैं तो ये सॉल्यूशन जो है ये हाइपरटोनिक है, यानी कि यहाँ पानी की मात्रा कम है कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा है, और उल्टा यहाँ प्लांट सेल में पानी की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्यूट की मात्रा कम है, तो यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी मूव करेगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग होगी। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक्सोस्मोसिस कहते हैं, और ये एक्सोस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, सेल वॉल से दूर हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस।
अब इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी क्या हो गया कि यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट की मात्रा कम है, और आप ये सेल को जब देख रहे हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, तो यहाँ पानी की मात्रा कम है और सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी मूव करेगा, तो इसमें फिर से साइटोप्लाज्म स्वेलअप हो जाएगा, सेल वॉल के कांटेक्ट में आ जाएगा, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। लेकिन अगर प्लांट सेल को हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वो बिल्कुल फ्लैट एंड फ्लैसिड हो जाएगा, और इसकी वजह से प्लांट में विल्टिंग यानी मुड़ाव, जो पत्तियां मुड़ी हुई आपको नजर आती हैं वो पत्तियां मुड़ी हुई या विल्टेड नजर आएंगी। तो ये आपने ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशंस का देखा किस तरह से वो रोल प्ले करता है, किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ कैसे मूवमेंट होता है चीज़ों का, और कैसे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो किस तरह से ये ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशंस अपना रोल प्ले करते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द थिंग्स की फॉर्म्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के क्या फॉर्म्स होते हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है, एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी स्वेलिंग हो गई, यानी कि एंडोस्मोसिस यानी अंदर जाना, एंडो यानी कि किसी भी सेल के अंदर पानी की एंट्री होती है अगर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया तो इसमें स्वेलिंग हो जाती है सेल की, और ये एग्जांपल आपने देख चुके हैं आरबीसी की स्वेलिंग एज वेल एज डीप्लाज्मोलिसिस ऑफ प्लांट सेल, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। एक्सोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस इज द एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल, यानी अब सेल के अंदर से पानी का बाहर आना, कौन से सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है जहां पानी की मात्रा कम है और सेल के अंदर पानी की मात्रा अधिक है, तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो पानी का बाहर आना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा श्रिंकिंग ऑफ आरबीसी और प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर फिगर में आप देखिए कि ये नॉर्मल सेल है, प्लांट सेल है, जहाँ पे ये फूड या जहाँ पे ये वैक्यूल है एज वेल एज ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है, यहाँ पे ये सेल वॉल आपको नजर आ रही है, ये छोटी अंदर की लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने इसको देखा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने इसको रखा तो सेल जो है टर्जिड हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है टर्जिडिटी हो गई, टाइट हो गया। लेकिन वहीं पे पानी जो है ये जब आपने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो पानी जो है वो बाहर रिलीज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए ये साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप कहने लगे प्लाज्मोलिसिस। तो यहाँ पे ये है ऑस्मोसिस का पर्टिकुलर दो प्रोसेस, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। कमिंग ऑन टू द रोल ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल। प्लांट में ऑस्मोसिस क्या रोल प्ले करता है, इट हेल्प्स द रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस, एक सेल से दूसरे सेल में पानी का ट्रांसफर होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, और वो होता है सेल टू सेल मूवमेंट होता है, यहाँ पे आप ऑस्मोसिस से ही होता है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सीड एंड स्पोर्स प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रॉस्ट, तो जो अगर ऑस्मोटिकली प्रेशर ज़्यादा होता है सीड के अंदर, स्पोर के अंदर, तो वो उसको फ्रॉस्ट से बचाता है। देन अगेन व्हेन यू सी, देन यू विल सी दैट लीव्स, फ्लावर्स और यंग शूट्स जो है वो स्ट्रेच्ड रखते हैं, और क्यों स्ट्रेच्ड होते हैं, वो क्यों टाइट रहते हैं, बिकॉज ऑफ सेल टर्जिडिटी, और ये सेल टर्जिडिटी जो है वो हेल्प करती है उसको टाइट। So it helps leaves and flowers and young shoots are kept stretched by cell turgidity, which is provided by osmosis. Then coming on to the next part, that is water is absorbed by the cell from digestive tracts by osmosis in animal cell. Animal में भी आप animal cells में भी देखते हैं कि osmosis बहुत important role play करता है. It helps the cells in the digestive tract to absorb water because of osmosis. So here this is the role of osmosis, and I hope so the entire concept, the three osmotically active solutions and all the concepts regarding osmosis has been cleared to you students. Now you will be able to solve the question that was given in the very first part, and the answer to that question number 2 is option D. You can work on that
And till then you can go through the lectures, you can make your concept clear, and in next lecture we will study about again membrane transport and we will come up with diffusion. So students, thank you, and if you have liked the lecture, if you have gained some